آخر کون تھے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے 72 لوگ؟ دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کی طرف سے لگاتار ہمارے کومنٹس باکس میں آنے والی ان ڈیمانڈز کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ جس میں آپ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے ہی عام طور پر الگ الگ کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، الگ الگ لوگوں کی زبان سے بھی سنتے آئے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو ان کے 72 جانثاروں کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، لیکن یہ 72 لوگ تھے کون؟ ان کا حضرت امام حسین سے، یا پھر ان کے والد یعنی حضرت علی سے، یا ان کے بھی والد ابو طالب سے، یا پھر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کنیکشن تھا؟ تو چلیے آج ہم لوگ کربلا کے شہیدوں پر ایک الگ اینگل سے ایسی گہری نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عام طور پر باقی لوگ نہیں ڈالتے ہیں۔ آر-ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کلیئر کرتا چلوں کہ بھلے ہی ہم لوگوں کو ہمیشہ سے ہی یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں 72 لوگ شہید ہوئے تھے، اور زیادہ تر کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ جو کہ کافی حد تک صحیح بھی ہے، مگر پھر بھی اگر آپ لوگ کبھی اس چیز میں گہرائی سے گھسنے کی کوشش کریں گے، ان سارے ہی 72 لوگوں کے ناموں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے یا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نمبر 72 نہیں، شاید 72 سے کچھ زیادہ تھا۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ 10 محرم کے دن کربلا کے میدان ہی میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان میں سے چند لوگ اس دن سے پہلے یا اس دن کے بعد بھی شہید کیے گئے تھے۔ تو چلیے سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں اہل بیت سے، یعنی کہ کربلا میں شہید ہونے والے ان خاص لوگوں سے کہ جن کا تعلق نبی علیہ السلام کی فیملی سے تھا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حضرت علی کے بھی فادر یعنی والد ابو طالب ابن عبد المطلب کی طرف چلنا ہوگا، کہ جو رشتے میں نبی علیہ السلام کے بھی نہ صرف سگے چچا تھے بلکہ شروعاتی دور میں ان کے سب سے بڑے محافظ بھی تھے۔ ویسے تو اتہاسک کتابوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ابو طالب ابن عبد المطلب کی 6 اولادیں تھیں، جن میں سے حضرت علی کو لگا کر 4 بیٹے جبکہ 2 بیٹیاں تھیں، مگر کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے تمام لوگ ان کے صرف 3 بیٹوں کی نسل سے تھے، جن میں سے پہلے تو ظاہر ہے حضرت علی شیر خدا ہی ہیں، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت جعفر طیار ابن ابو طالب ہیں، اور تیسرے بیٹے حضرت عقیل ابن ابو طالب ہیں۔ اب دوستو، ان 3 بیٹوں میں سے بھی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حضرت علی شیر خدا کے بارے میں۔ ویسے تو زیادہ تر ہم لوگوں کو حضرت علی کی صرف ایک ہی بیوی یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ اور ان کے 2 پیارے بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا ہی ذکر سننے کو ملتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ حضرت علی نے اس وقت تک کبھی بھی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا کہ جب تک نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ اس دنیا سے ظاہراً رخصت نہیں ہو گئیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت علی نے الگ الگ وقتوں پر کئی نکاح کیے، اور اس طرح سے ان کی ٹوٹل الگ الگ 9 بیویوں سے 14 کے قریب لڑکے جبکہ 19 کے قریب لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے ان میں سے 8 بیٹوں کو جبکہ زیادہ تر پوتوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ حضرت علی کے پہلے بیٹے اور حضرت امام حسین کے بڑے بھائی یعنی کہ حضرت حسن، کہ جنہوں نے حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک کے لیے مسلمانوں کی خلافت کو بھی سنبھالا تھا، وہ خود تو کربلا کی جنگ کے وقت موجود نہیں تھے بلکہ لگ بھگ 10 سال پہلے ہی زہر کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے، مگر ان کے لگ بھگ 20 بیٹوں میں سے 7 بیٹوں کے کربلا کی اس جنگ میں شامل ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ ان میں سے 4 بیٹوں کے شہید ہونے کی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ ان 4 بیٹوں میں سے سب سے پہلے تو حضرت قاسم ہی تھے کہ جن کی عمر اس وقت زیادہ میں زیادہ 13 سے 14 سال کے قریب ہی تھی، اور ان کے بارے میں اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ان کو گھوڑوں سے روند کر شہید کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت ابو بکر تھے کہ جن کو تیر مار کر شہید کیا گیا تھا۔ تیسرے بیٹے حضرت عبداللہ کہ جن کی عمر صرف 11 سال تھی، وہ اس وقت شہید ہوئے کہ جب وہ حضرت امام حسین کے اوپر ہونے والے ایک حملے کو روکنے کے لیے ان کے سامنے ڈھال کی طرح آ گئے تھے۔ حملے کو روکنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ اس طرح سے زخمی ہوا کہ وہ لٹکنے لگا۔ اس کے بعد حرملہ نے ان کو تیر مار کر حضرت امام حسین کے بازو میں ہی شہید کر دیا، جبکہ شہید ہونے والے چوتھے بیٹے کا نام بشر ابن حسن بتایا گیا ہے۔ اس جنگ میں حضرت حسن کے مشہور بیٹے حسن المثنی بھی شامل تھے کہ جو بڑی ہی بہادری کے ساتھ لڑے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے وہ حد سے زیادہ زخمی حالت میں قیدی بنا لیے گئے۔ بعد میں حضرت امام حسن کی زیادہ تر نسل انہی سے آگے بڑھی اور انہی کو ہی حسنی سید کے نام سے جانا گیا، اور اسی نسل میں سب سے مشہور صوفی بزرگ یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت حسن کے بعد اب اگر حضرت علی کے دوسرے بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسین کی بات کی جائے تو وہ خود تو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کے 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے تھے۔
पहले बेटे का नाम हजरत इमाम अली अकबर था कि जिनकी उम्र उस वक्त लगभग 18 से 25 साल के बीच में बताई जाती है। इनके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि ये हद से ज्यादा बहादुरी के साथ लड़े, मगर फिर मुर्रा इब्ने साद नाम के एक जंगजू ने धोखे से इनके पीछे से हमला करके इनको शहीद किया था। जबकि दूसरे शहीद होने वाले बेटे का नाम था अली असगर। अली असगर जैसी दर्दनाक शहादत तो शायद इतिहास ने कभी भी नहीं देखी होगी। उसकी वजह यह है कि ये अपनी शहादत के वक्त एक नौमौलूद बच्चे ही थे कि जिनको उस वक्त तीर मार कर शहीद किया गया कि जब ये अपने वालिद यानी हजरत इमाम हुसैन की गोद में प्यास से बिलबिला रहे थे। इमाम हुसैन के तीसरे बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में मौजूद तो थे, मगर बीमार होने की वजह से इस जंग में शामिल नहीं हो सके थे। इनको भी बाद में कैदी बना लिया गया था और शायद खुदा को मंजूर भी यही था, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की आगे की नस्ल फिर इन्हीं से चली थी। हजरत अली के तीसरे बेटे अब्बास इब्ने अली के जिनको आमतौर पर हम लोग अब्बास अलमदार के नाम से याद करते हैं, वो भी इस जंग में शामिल थे और उनके बारे में तो इतिहासकार लिखते हैं कि वो दुश्मन फौज को चकमा देकर दरियाए फुरात तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए थे, मगर वापसी में पानी लाते वक्त उनको शहीद कर दिया गया था। हजरत अब्बास अलमदार के बेटे कासिम इब्ने अब्बास भी इस जंग में शहीद हुए थे, जबकि इनकी नस्ल इनके एक दूसरे बेटे उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास से चली कि जिनको आजकल अलवी कबीले का एंसेस्टर माना जाता है। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के इस मैदान में हजरत अली के 8 बेटों और ज्यादातर पोतों को शहीद किया था, तो 2 बेटों यानी कि हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास की बात तो हम लोगों ने कर ली, जबकि बाकी बचे हुए 6 बेटों के नाम कुछ इस तरह से हैं। पहले बेटे हजरत जाफर इब्ने अली, दूसरे अब्दुल्ला इब्ने अली, तीसरे हजरत उस्मान इब्ने अली, चौथे हजरत अबू बकर इब्ने अली और जबकि 5वें मोहम्मद अल असगर इब्ने अली और छठे और आखिरी हजरत उमर इब्ने अली। तो इस तरह से ये टोटल अब 8 बेटे बनते हैं। दोस्तों अब हम लोग एक बार फिर से जरा ऊपर की तरफ चलते हैं और अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे यानी कि हजरत अली के एक दूसरे भाई जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब की नस्ल को देखते हैं। ये जो हजरत जाफर थे ये हजरत अली से उम्र में लगभग 10 साल बड़े हुआ करते थे और करबला से बहुत पहले ही बैजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। इनके बारे में इस्लामी रिवायात में आता है कि इनके जब जंग में दोनों बाजू कट गए थे ये उसके बाद भी लड़ते रहे थे और इनकी बहादुरी को देखकर ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जाफर तैयार का लक़ब दिया था, जिसका मतलब होता है जन्नत की तरफ तेजी से उड़कर जाने वाला। करबला के मैदान में इनके भी 2 बेटे शहीद हुए थे और इसके अलावा इनके 2 पोतों की शहादत की भी रिवायात मिलती हैं। करबला में शहीद होने वाले बेटों के नाम इतिहासकारों ने ओन और मोहम्मद अल असगर बताए हैं, जबकि इनके जो 2 पोते भी शहीद हुए थे उनके नाम भी मोहम्मद और ओन बताए गए हैं। लेकिन याद रहे कि ये दोनों पोते हजरत जाफर के उन्हीं दोनों बेटों की औलाद नहीं थे कि जो करबला में शहीद हुए थे, बल्कि ये तो एक तीसरे बेटे अब्दुल्ला की औलाद थे कि जो बीमारी की वजह से खुद तो करबला के मैदान में नहीं आ सके थे, मगर इनके ये दोनों बेटे अपनी माँ यानी कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मौजूद थे और इन दोनों को भी करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन शहादत नसीब हुई थी। अब अगर हम अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के तीसरे बेटे यानी कि हजरत अली के तीसरे और बड़े भाई अकील इब्ने अबू तालिब के बारे में बात करें तो उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो खुद तो करबला के इस वाक़ये से बहुत पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, मगर उनकी लगभग सारी ही औलादें और उनके सारे ही पोते करबला के मैदान में शहीद किए गए थे। और इनके सबसे बड़े बेटे तो वही मुस्लिम बिन अकील थे कि जिनको हजरत इमाम हुसैन ने अपना सफीर बनाकर कूफा की तरफ रवाना किया था और उन्होंने कूफा पहुंचकर जब कूफा को महफूज जाना और सारी कंडीशन को अपने फेवर में जाना तो एक वापस खत लिखकर हजरत इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दी थी। मगर फिर कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद ने न सिर्फ पहले उनको कैद किया बल्कि किले की छत पर सरेआम लोगों के सामने उनका सर भी कलम कर दिया था और उनको जिसने कूफा के अंदर पनाह दी थी उसका भी सर कलम करवा दिया गया था। और इस तरह से लगातार उस दौर में जो यजीद को सर भेजे गए थे उनमें से ये 2 सबसे पहले सर थे। हजरत अकील इब्ने अबू तालिब के मुस्लिम बिन अकील के अलावा जो दूसरे बेटे शहीद हुए थे उनका नाम अब्दुर्रहमान इब्ने अकील बताया जाता है। ये न सिर्फ हजरत अली के कजिन ही थे बल्कि रिश्ते में दामाद भी थे और ये हजरत अली की तरह ही बहुत ज्यादा बहादुर भी माने जाते थे। इसीलिए इन्होंने करबला के मैदान में अकेले ही 17 से 18 फौजियों को कत्ल कर दिया था।
बाद में ये भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। न सिर्फ ये बल्कि इनके एक और भाई अब्दुल्ला इब्न अकील, जबकि एक और भाई जो काफी कम उम्र थे यानी कि मोहम्मद इब्न अबी साद इब्न अकील, ये सब भी शहीद हो गए थे। ये तो मामला अकील इब्न अबू तालिब के सिर्फ बेटों का था, जबकि इनके कई पोते भी शहीद हुए थे और जितने भी शहीद हुए थे उनमें से लगभग सारे ही या फिर ज्यादातर मुस्लिम बिन अकील की ही औलाद थे। मतलब उन्हीं मुस्लिम बिन अकील की औलाद के जिनके बारे में हमने पहले ही जिक्र किया कि उनको कूफा में सफीर बनाकर भेजा गया था। इनमें से मुस्लिम बिन अकील के जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम भी मुस्लिम बिन मुस्लिम था। वो तो कूफा में अपने वालिद के साथ ही मौजूद थे, तो इसीलिए उनके वालिद के साथ ही उनका भी सर कलम करवा दिया गया था। जबकि इनके दो और बेटे यानी कि अब्दुल्ला और औन इब्ने मुस्लिम करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे और लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम के बारे में तो लिखा गया है कि इनकी शहादत माथे पर तीर लगने से हुई थी। इनकी उम्र भी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 14 साल के करीब थी। और हैरानी की बात तो ये है कि ये अहले बैत में से अशूरा के दिन शहीद होने वाले पहले इंसान थे। इन तीन के अलावा हजरत मुस्लिम बिन अकील के दो और भी बेटों के नाम ऐतिहासिक किताबों में मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद इब्ने मुस्लिम जबकि दूसरे का नाम इब्राहिम इब्ने मुस्लिम बताया गया है। इन दोनों की शहादत करबला के इस वाक़ये से लगभग 1 साल के बाद हुई थी। ये दोनों काफी कम उम्र थे और इनको कैदी बनाकर रखा गया था। लेकिन लंबे वक्त के बाद जब अचानक से एक दिन ये दोनों कमसिन बच्चे कैद से फरार होने में कामयाब हो गए, तो ये एक कूफी इंसान हारिस बिन बद्र के हत्थे लग गए, जिसने गवर्नर की तरफ से इनके ऊपर लगाए गए इनाम को हासिल करने के लिए दोनों को शहीद कर दिया और इन दोनों के सर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश करके जो इनाम था उसको हासिल कर लिया। अहले बैत के अलावा करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन शहीद होने वाले लोगों में 2 सहाबा का नाम भी मिलता है, जिनमें से एक तो हजरत अनस इब्ने हारिस थे कि जो जंगे बदर या फिर हुनैन वगैरह में भी शामिल हो चुके थे, जबकि दूसरे सहाबी का नाम हजरत अबू हजल मुस्लिम इब्ने औसजा असदी बताया जाता है। जबकि अहले बैत के अलावा भी करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन शहीद होने वाले लोगों की लिस्ट काफी लंबी है, जिनमें से ज्यादातर तो ऐसे भी हैं कि जो न सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के ही साथ रहे बल्कि उससे पहले के दौर में हजरत अली के भी साथ में रहे थे और हजरत अली की तरफ से ही सारी जंगों में या सारी चीजों में हिस्सा लिया था। यहाँ पर अगर मैं कुछ लोगों के भी नाम मेंशन करने की कोशिश करूँ तो उसमें हजरत जुबैर इब्ने अलकैन अल बजली, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर अल असदी, हजरत बुरैर इब्ने खुजैर अल हमदानी, उमैया इब्ने साद अल ताई, जुंदब इब्ने हजर अल खौलानी, हुज्जाज इब्ने मसरूक अल जौफी, नाफी बिन हिलाल अल जमाली, अबू वहाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर, अल हुर इब्ने यजीद अल तमीमी। याद रहे कि ये वही अल हुर हैं कि जो आखिरी वक्त में यजीद की फौज को छोड़कर हजरत इमाम हुसैन की तरफ आ गए थे, वो भी अपने कई साथियों के साथ, जिसमें से इनके खुद के 2 बेटे भी शामिल थे। ये तो चंद ही नाम है, वरना ये लिस्ट अभी भी काफी लंबी है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि सबके इस तरह से नाम लेने की बजाय जो नाम भी मैंने अपनी रिसर्च से निकाले हैं उन सभी शुहदाए इकराम की लिस्ट मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लगा दूंगा, ताकि आप लोग पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको आराम से पढ़ सकें। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। और इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप लोग आगे भी लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।